या राजनपुर कहाँ के राजनपुर के दोस्तों के साथ भी इसी नौयत का मामला था कि वहाँ उनसे उनकी ज़मीनें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इदारों ने ज़बरदस्ती जो है वो उनसे छीनी थी, तो वो भी उनके नुमाइंदों को भी हमने बुलाया था, आपसे भी कहा था कि आप आइए, तो आपने कहा जी ज़मान मैं देख रहा हूँ आपको, थैंक यू। सही कह रहे हैं आप। आपको कहा था कि किसी को मैं भेजता हूँ, आपके दोस्तों में से वो आए थे, क्या नाम है, हैदराबाद से थलो, हमारे बख्शल थलो, तो बख्शल थलो ने आपको रिप्रेजेंट किया था। हाँ, सिंध से इस तरह से। जी नबीला, कराची आने का कोई सिलसिला नहीं बनता है आपका? अभी तो नहीं है कोई भी, अभी तो नहीं है। चलो ठीक है, बस सारे मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ओके, टेक केयर। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप भी अनम्यूट कर लें अपने आप को, आपकी आवाज बंद है ज़मान साहब, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम है भाई, गुड इवनिंग, क्या है, ठीक है आप? वेरी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं। आवाज आ रही है? जी ज़मान, गुड इवनिंग। चले जी, गुड इवनिंग, क्या है, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, कौन सी जुबान में, उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, कौन सी जुबान में? जेडी जुबान जेडी है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, कम्युनिकेट कर सकते, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਵੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ। बिल्कुल सही है, हाँ, मैं भी ऐसे गल दा यकीन करदा। हाँ जी, जुबान इतना से इशू। ज़मान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਮਾਓ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾਓ ਅੱਗੋਂ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਹਟਾਓ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਟਾਓ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ठीक है, ऊपर नहीं देखना, ਹੁਣ ठीक है, that's very good, अब ठीक है। थैंक यू फारूक। नहीं ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਹੀ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਫਾਰੂਕ। 76-77 तकरीबन 50 साल पहला, 50 साल पहले की गल, बिल्कुल सही। अबाउट जी मेरे ख्याल साडी मॉडरेटर स्टिल स्ट्रगलिंग, नबीला बस मेरे ख्याल है कि जिमी मतलब आंदे ने we'll start it. Sorry for the delay. No, that's all right. नवी
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 2 ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਨਬੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਬੀਲਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲੋ। ਨਬੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਬਿੱਟੂ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। Let me ring. जी नबीला, नहीं तुसी इजीली ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਇਜ਼ੀਲੀ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। Oh, good. Wonderful. Thank you. Okay. Wonderful. Thank you. Wonderful. Thank you. ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲੈਸ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਸਫੀਨਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ। Thank you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਨੋ ਵਰੀਜ਼। ਜੀ ਸਲੀਮ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਫੀਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੀਜ਼। तुम शुरू कर दो। नबीला फिर चली गई शायद। नबीला तो मेरे ख्याल कनेक्शन दा प्रॉब्लम है। मैं नबीला चेक कर लूं फिर शुरू करिए।
शुरू करिए नबीला। ओके मैं आखिरी एक ट्राई कर ला, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इट। ओके जी, हम शुरू करते हैं। नबीला जब कनेक्ट हो जाएंगी तो फिर ज्वाइन कर लेंगी। लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानब से आप सबको आज के इवेंट में खुशामदीद। हम अपने उन तमाम साथियों को भी खुशामदीद कहते हैं जिन्होंने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया है, और हम अपने नाजरीन से माजरत खा हैं कि कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। आज की नशिस्त का एहतमाम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से किया गया है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जिसकी बुनियादी असास अक़लियती हकूक़ और जमहूरी कदरें हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुकर्ररीन का जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम एक ऐसी सूरत हाल पर बातचीत कर सकें जिसमें मजहबी अक़लियतों को पाकिस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी के होने का एहसास दिलाया जाता है। 2 सितंबर को कराची के एक सरकारी इदारे की तरफ से मुलाजमतों के लिए एक इश्तहार में सैनिटरी वर्कर्स की मुलाजमतों के लिए सिर्फ गैर मुसलमानों को दरख्वास्तें देने के लिए कहा गया। वाज़ेह तौर पर यह ऐड डिस्क्रिमिनेटरी है। ये अपनी नौयत की पहली ऐड नहीं, बल्कि रियासत के गैर मुसलमानों के साथ मुतसबाना रवैये का तसलसल है। कहते हैं दुनिया किसी बुरे आदमी के तशद्दुद से इतनी मजरूह नहीं होती जितनी वो अच्छे इंसानों की खामोशी से होती है। लिहाजा आज का ये इज्तिमा, ये इवेंट खामोशी को तोड़ने की जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद तमाम मेहमान एक तवील अरसे से समाजी तब्दीली के अमल में मसरूफ हैं। उन सब की गुफ्तगू यकीनन हम सब के लिए रहनुमाई का बायस होगी। हमारी आज की मॉडरेटर मोहतरमा नबीला फरोज भट्टी हैं, लेकिन अभी तक वो क्योंकि हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे ही हमें ज्वाइन करें हम उन्हें अपने साथ शामिल कर लें। लेकिन मैं उनका तारुफ जरूर करवा देता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि नबीला फरोज भट्टी साहिबा ने मेरी दरख्वास्त पर यह जिम्मेदारी कबूल की। आप बच्चों के हकूक़ की एक मुतहर्रिक एडवोकेट हैं। इंसानी हकूक़ और समाजी तब्दीली के हवाले से ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने का उनका वसी तजर्बा है। वो 2016 से चाइल्ड राइट्स मूवमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर हैं
آج کل وہ سانج پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے مختلف حیثیتوں میں بہت سی اہم تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے. آپ گورنمنٹ ڈگری کالج سرگودا میں اکنامکس اور سینٹ میریز کالج نوٹر ڈیم انڈیانا امریکہ میں سوشل جسٹس پڑھاتی رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ نبیلہ. جیسے ہی آپ ہمیں جوائن کریں گی تو پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو اقلیتیں ہیں وہی کیوں سینٹری ورکرز کی جابز کے لیے انہیں ہی کہا جاتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ مختلف ایڈس جو ہیں ان کے ذریعے سے اقلیتی افراد کو کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سینٹری ورکرز کی جابز کے لیے اپلائی کریں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایڈ ہے جو جنگ کراچی میں چھپی. اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور ایڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جولائی 2020 کو پاکستان ملٹری نے ایک ایڈ دی تھی اور جب جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جب انہوں نے احتجاج کیا تو یہ ایڈ واپس لے لی گئی. اس کے علاوہ نومبر 23 2019 کو بھی پنجاب ڈپارٹمنٹ ناروول نے بھی اسی قسم کی ایک ایڈ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پوسٹس آف دا سینیٹیشن ورک shall be filled by the person belongs to religious minorities only. تو یہ ایک تسلسل ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے, کیوں اس قسم کی ایڈز مسلسل احتجاج کے باوجود ہمیں نظر آتی ہیں اور کیوں ریاست اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتی. ہمارے ساتھ جو پینل ہے وہ بہت ہی ان کا وسیع تجربہ ہے انسانی حقوق کے میدان میں. وہ جرنلسٹ, ان میں سے بہت سے جرنلسٹ بھی ہیں, وہ کھل کھلا کے لکھتے بھی ہیں. اور میں اب پہلے جو ہماری مہمان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں. میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی ہیں سفینہ جاوید صاحبہ جن کا تعلق کراچی سے ہے. وہ فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی. اقلیتی عورتوں کے حقوق کے لیے ان کا کام بہت زیادہ ہے. وہ ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں اور وہ صدر ہیں سندھ چیپٹر کی مائنورٹی رائٹس کمیشن کی. انہوں نے بہت سی اہم تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے جن میں ادارہ امن انصاف, UNDP, آغا خان یونیورسٹی, عورت فاؤنڈیشن اور پائلر. تو میں گزارش کروں گا اپنی ساتھی سفینہ جاوید صاحبہ سے کہ وہ اس موضوع پر اپنی بات شروع کریں. جی سفینہ پلیز. تھینک یو آفتاب بھائی, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. جہاں تک اس جاب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ ڈسکریمنیشن کی جو چیزیں ہیں اور جو صورتیں ہیں وہ پاکستان میں نئی نہیں ہیں, بلکہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے, انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو اسی وقت سے مائنورٹی کو یہاں پہ اپریسڈ رکھا گیا. اور ایک صورتحال یہی نظر آتی ہے یا لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ غیر ملکی ہیں پاکستان میں. ابھی تک ان کو سیکنڈ سٹیزن تو کہا جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے اوپر ایلیمنٹ لگا دیا جاتا ہے کہ ہندو ہے تو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اور کرسچن ہیں تو یورپین کنٹری میں سے بلانگ کرتے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. اسی وجہ سے انہیں سیکنڈ درجے کا آپریس بنا کے رکھا جاتا ہے اور اسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہمیں ہر مقام میں نظر آتی ہے اور یہ ایڈورٹائز اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. میں اس میں بہت ایڈمائر کروں گی ہمارے پنجاب کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ آتی ہیں. انہوں نے, آپ نے جو اس سے پہلے آرمی کی ایڈورٹائز بتائی کہ اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کے اوپر کام کیا, تو انہوں نے اس ایڈورٹائز کو بیک کیا. اسی طرح سے کراچی میں بھی ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ سینیٹری ورکرز
की जितनी भी एडवर्टाइज आ रही है वो अभी कराची सिंध में ज़्यादा आ रही हैं, कराची और हैदराबाद में स्पेशली। तो हमारे कुछ साथियों ने इसके ऊपर पिटिशन भी किया है। आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। स्वीपर आर सुपर हीरो, उनसे मेरी बात हुई, सैमुअल प्यारा साहब से अभी, तो उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में एक्शन ले रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीपर सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से भी बात की है, तो उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि एज अ एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, क्योंकि लेबर के लिए भी हम काम करते हैं, तो ये सिलसिला जो है ये लेबर से जुड़ा हुआ है ज़ाहिर है। और उसमें जैसे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर UDHR में, ह्यूमन राइट्स में भी ये पाया जाता है कि किसी भी रंग, नस्ल और उसके बगैर कोई तफरीक नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों का जो गवर्नमेंट का है वो माइंडसेट क्यों अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि माइनॉरिटी को मज़हब की बुनियाद के ऊपर क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं। और जो स्ट्रगल है वो तो जारी और सारी है इसके लिए, और हर जगह के ऊपर हम लोग एडवोकेसी भी करते हैं, डायलॉग भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और काम किया जाए। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब भाई। थैंक यू सफीना। सफीना ने हमारे साथ कराची की सूरत हाल को शेयर किया, लेकिन साथ उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका भी जिक्र किया, जो एक हौसला अफजा बात है। गो उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ प्रॉपर तौर पे, लेकिन वो एक ऑर्डर जरूर है जिसके लिए हमें मिलकर कोशिश करनी है ताकि उस पर अमल दरामद हो और मुल्क के अंदर मौजूद तासुब और गैर मुनसिफाना रवैयों को कम करने में मदद मिल सके। इस वक्त मैं दावा देना चाहता हूं अपने दूसरे मेहमान को, ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट साहब, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, आप पंजाब असेंबली के साबका मेंबर हैं और 3 दफा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरगोदा के भी मेंबर रह चुके हैं। आपने ब्लास्फेमी केसेस में भी अपनी खिदमत पेश की लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, और ख़ास तौर पे रिमशा मसीह केस जो एक बहुत ही मारूफ केस था पाकिस्तान में, उनके वो डिफेंस लॉयर थे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ अपने तजर्बा शेयर करें कि ये जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होती है कमज़ोर इंसानों के खिलाफ, आपकी इस पे क्या राय है? जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब। मैं सबसे पहले तो मिनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये आज मौका फराहम किया कि हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात कर सकें। मैं 98 से ये बताना चाहता हूँ, जब से मैं प्रैक्टिकली सियासत में आया तो ये ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज जो अखबारात में आती थी उसमें अक्सर ये लिखा जाता। उस वक्त जिला सतह पे जब निशानदेही की जाती थी तो वो दोबारा ऐड देते थे। फिर हम पंजाब असेंबली के जब मेंबर बने फिर भी हमने कोशिश की है, जहां कहीं भी ऐसी ऐड आती थी तो वो जब उसको पॉइंट आउट किया जाता था वापस होती थी। असल में सूरत हाल ये है कि इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं, क्योंकि शहीद हक शहबाज भट्टी का फॉलोअर भी हूं, 2009 में हमने 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे जब डिक्लेयर कराया तो उससे पीछे जो सोच थी वो सिर्फ सोच यही थी कि हम कायदे आजम के उस विजन को कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे उसे सामने लेके आए। क्योंकि 2009 से पहले जब तक 11 अगस्त माइनॉरिटी डे डिक्लेयर नहीं हुआ था तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को कायदे आजम की उस पॉलिसी साज तकरीर का नहीं पता था कि कैसा पाकिस्तान होगा।
इसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बिला तफरीक रंग, नस्ल और मजहब बराबर के शहरी हैं। और जब हम आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 को देखते हैं, उसमें भी वो तमाम शहरियों को, तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का शहरी जो है वो गर्दानता है। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि सिर्फ मिनॉरिटी को अछूत समझा जाता है और आज तो बहुत सारे जो अक्सरियत के लोग हैं उन्हें मिनॉरिटी ये सैनिटरी वर्कर की सीटों पे भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें दूसरे कामों पे लगा दिया जाता है। सीटें जो वो सैनिटरी वर्कर पे भर्ती होते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में इकट्ठे बसते रहे हैं और जो कुछ वहां होता रहा है, क्योंकि छूत छात जो जात पात का है वो हिंदुइज्म में हम सबको पता है बहुत ज्यादा है। जो कुछ वो करते रहे हैं वो आज अक्सरियत हमारे साथ करती है। और उस वक्त हम जब बुजुर्गों से इन बातों को सुनते हैं कि जब भी कोई मुस्लिम भाई कहीं से गुजर जाता था तो वो जो गाय या उसके गोबर से उसे साफ करते थे, पाक करते थे। तो आज वो सारी चीजें जो है वो माइनॉरिटी के साथ की जाती है। और हमें आज ना सिर्फ वो, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ ये बात ना हो, ये भी ऑनर की बात है कि कम से कम हाथ फैलाने वाले लोग नहीं, गिरी से गिरी मजदूरी करते हैं वो लोग, वो हाथ नहीं किसी के आगे फैलाते। लेकिन सिर्फ उन्हें, मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं, जिस तरह आर्मी की आपने बात की, तो एक साहब आगे, मैं भी बैठा हुआ तो उस वक्त मैं मेंबर जिला कौंसिल था, तो उन्होंने आते कहा कि 2 चूड़े चाहिए देने। मतलब मैंने कहा यार तुझे किसने मेजर बनाया, किसने तुझे भर्ती किया कि इतनी बड़ी, तुझे तमीज ही नहीं कि किस तरह से तूने बात आगे करनी है। तो सिर्फ वो, मैं समझता हूं कि वो समझते हैं कि मिनॉरिटी के लोग जो है वो मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो हमें सर्व करेंगे। और ये छोटे जहनों की पैदावार है। लोगों को छोटे कम से कम ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये एडवर्टाइज सरकारी इदारों में आ रही हैं उन्हें रोका जाए। बहुत दफा ये ऐसा हो चुका है। और जब भी किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उसकी निशानदेही की, किसी असेंबली के फ्लोर पे उस पर बात हुई, तो वो एड जो है वापस ले ली जाती है। लेकिन इसको सिर्फ एक एक को पॉइंट आउट करने के बजाय, जिस तरह आज आपने ये तमाम किया, हमें तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपने फोरम पे इस बात को ज्यादा से ज्यादा जो है वो जब फैलाएंगे और बहुत सारे लोगों को, महकमों को ये पता चलेगा, तो फिर ही ये बात बन सकती है कि वो एंडा को इस चीजों से जो है वो बात रहे। और ये आज हम देखते हैं कि दूसरे महकमों में जब एड्स आते हैं, जो देते हैं एडवर्टाइजमेंट, ये शहबाज भट्टी का ये भी कारनामा था। सिर्फ हम 5% जॉब कोटा, सिर्फ हमने कहा था कि 10 साल हो जाए। कम से कम ये समझ आ जाए कि मिनॉरिटी के लोग जो हैं, पहले आपको पता बहुत कम भर्ती होते थे, CSS, PCS और तमाम जितनी भी महकमा है, तमाम डिपार्टमेंट में आज कोटे पे लोग भर्ती हो रहे हैं। सिर्फ ये बताना चाहते थे कि मिनॉरिटी में भी SP हो सकता है, इसमें भी DC हो सकता है, इसमें भी कमिश्नर हो सकता है। वो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ ये जो टैग है ना कि मिनॉरिटी का बंदा सिर्फ स्वीपर ही हो सकता है, इसे खत्म करने के लिए वो भी एक कोशिश थी। हालांकि बहुत सारे दोस्त चाहते हैं, कहते भी हैं कि हमें ये कोटा सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए था। उसके पीछे भी लॉजिक यही थी कि कुछ देर के लिए अगर ये कोटा पे 10 साल अमल दरामद हो जाए, दूसरे महकमों में कहीं पे बाहर अगर सैम्बल मसीह की जो है वो प्लेट लगी होगी DC की, तो कम से कम लोगों का माइंड सेट चेंज होगा कि नहीं यार, मिनॉरिटी में DC भी होता है, उनमें SP भी होता है, सिर्फ सैनिटरी वर्कर ही नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि आपकी बहुत अच्छी काविश है। ये बहुत बड़ा मसला है कि इसे कम से कम ये लोगों के जहनों से निकालने के लिए हम तक को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ताहिर नवीद साहब। ताहिर नवीद ने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हमें बात को समझाने की कोशिश की है। अब मैं नबीला की तरफ जाता हूं। अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर मैं नबीला से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को टेक ओवर करें यहीं से। नबीला, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी प्लीज, जी प्लीज। अच्छा, चलें फिर आप यहीं से टेक ओवर करें और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जमान साहब के इंट्रो की।
पहले बहुत माजरत आप सब साथियों से भी जो मेरे साथ पैनल में थे और लोग देख रहे हैं उनसे भी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइमली ज्वाइन नहीं कर सकी। तो जी नबीला, नबीला के अभी तक कनेक्शन का मसला हल नहीं हुआ, तो मैं जमान साहब को दावत देता हूँ। हमारे साथ अब हमारे अगले मेहमान जमान खान साहब हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो एक बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे उनके साथ बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ सेशंस और वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत का मौका मिला। वो एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत खुल के, बहुत मुश्किल मौज़ूआत जिनको दूसरे सहाफ़ी हाथ लगाते हुए डरते हैं, वो उन पे खुल के लिखते हैं। मेरी मुराद है कि वो फंडामेंटलिज्म हो या ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज हो या अक़लियतों की विक्टिमाइजेशन हो, उनकी तहरीरात हमें मुख्तलिफ अखबारात में मिलती हैं। ना सिर्फ वो दूसरे अखबारात में बल्कि नेशनल पेपर्स में भी उनकी तहरीर हमें मिलती है। वो रेगुलर लिखते हैं। वो फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और इसके अलावा he has been working with many international and national human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Commission of Pakistan. तो मैं गुजारिश करूंगा जमान खान साहब से कि वो इस मौजू पे रोशनी डालें कि इसका जो समाजी पस मंजर है वो क्यों है, और अभी तक रियासत जो है वो क्यों इस बात पे बाकायदा इंसिस्ट कर रही है कि जो ये सैनिटरी वर्कर्स की जॉब है उसके लिए सिर्फ गैर मुस्लिम ही अप्लाई करें। जी जमान खान साहब। जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। पुराने साथी इकट्ठे हुए हैं। शुरू में पहले मैं कहूँगा कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत एक्ट है सिंध गवर्नमेंट का, बल्कि हम सब के लिए बाइस शर्म है कि आज तक हम अपनी इतनी जदोजहद के बाद भी माइंड सेट चेंज नहीं कर सके। इसकी वजह ये है कि हमें थोड़ा सा कुछ वक्त के तारीख में जाना पड़ेगा। हिंदुओं की ज़ात पात में एक दलित या शूदर जिसे कहते हैं आप जी, और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जब शूदर या दलित लोगों ने क्रिश्चियन हुए तो अंग्रेज़ भी बहुत रेसिस्ट थे। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने अपना बहुत सारे उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन ये गुलामी में इतने रेसिस्ट ने यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, काले क्रिश्चियंस के साथ दफन होना भी पसंद नहीं किया, और हर शहर में अपना एक गुरों का कब्रिस्तान बनाया जहाँ के काले नहीं दफन। हमारे साथी, हमारे भाई, उन्होंने मज़हब तो तब्दील कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका पेशा नहीं तब्दील किया, उनकी समाजी हैसियत तब्दील नहीं की, बल्कि उनको दुनिया से अलग थलग कर दिया, उनकी अलहदा बस्तियाँ बनाई और उन्हें वही पेशा इख्तियार करने पे मजबूर किया जो कि वो पहले करते थे तारीखी तौर पे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों में वही हैंगओवर है अंग्रेज़ों वाला। बावजूद हमारी कोशिश के आज भी वो जो क्रिश्चियंस हैं, जो अपना मिनॉरिटीज़ हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, उन्हें उसी नज़र से देखते हैं जैसे कि अंग्रेज़ देखते थे। ये कि बहुत शर्म की बात है। आप देखें ना, इलेक्शन का मसला 56 के आइन में, आप शायद बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा कि 2 सूबे थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान में जॉइंट इलेक्टोरेट था और मगरबी पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट। मेरा वही सोच जो बरसरकार लोग हैं उनकी वही सोच है कि जितने पिछड़े हुए तबकात हैं, खा वो ईसाई हैं, खा वो हिंदू हैं, खा वो मुसलमान गरीब आदमी हैं, पसमानदा लोग हैं, सबके साथ एक बहुत ही अपार्टहाइड का, एक डिस्क्रिमिनेशन का उनका रवैया है। अब मैं समझता हूँ
کہ ہم لوگوں نے جتنی جدوجہد آج پنجاب میں میرا خیال ہے کہ پنجاب کی حکومت کا یہ رویہ اب ختم ہو گیا، تو ہمیں باقی صوبوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے، پریشرائز کرنا چاہیے، ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے، پٹیشن کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھی ہو کر انہیں شرم دلوانی چاہیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم شور کہ پاکستان میں مسلمان بھی ایسے غریب ہیں، میرے گھر میں جو آتے ہیں باہر وہ مسلمان ہیں، وہاں سے جو سالڈ ویسٹ اٹھانے والا ہے، اگر یہ کریں گے، غریب مسلمان اتنے ہیں کہ وہ بھی کام کرنے کے لیے، مکہ اور مدینہ میں کون سے عیسائی ہیں، کون سے غیر مذہب کے لوگ، وہاں تو غیر مذہب کے لوگ جا بھی نہیں سکتے، وہاں یہ سارا کام مسلمان کرتے ہیں۔ تو میں یہ کروں گا کہ یہ طویل جدوجہد میں ہمارے منہ پہ ایک کالک ہے، جو ہمارا ایک قرضہ ہے، قرض ہے جو ہمیں چکانا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ تمام پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو برابر کی حیثیت دیں، اور جیسے کہ قانون میں لکھا ہے، کسی جگہ نہیں لکھا کہ کسی کی ذات، کسی کا مذہب، کسی کا علاقہ، کسی کا جو بھی آئیڈینٹی ہے اس کی بنیاد پہ اسے نوکریاں دی ہیں، نہیں، یہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ اس سے غریب آدمی، غریب مسلمان بھی خوش ہوگا، غریب ہندو بھی خوش ہوگا، غریب عیسائی تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات بھی ہو رہی ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اپنا بہت سماجی رویہ اور سماجی حیثیت تبدیل کی ہے، بہت سارے پیشوں میں انہوں نے ایکسیل کیا ہے، فوج میں کیا ہے، پڑھائی میں کیا ہے، ایجوکیشن میں کیا ہے، اور بہت سارے ادب میں کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں آئے ہیں وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں گے، اور جیسا کہ یہ سائنس کی ترقی کے ساتھ دنیا اکٹھی ہو رہی ہے اور تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھی جو ہینگ اوور ہے اس کو بھی ہم پاش کریں گے اور اس کو پاکستان سے مٹا کر دیں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو زمان خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک دفعہ پھر نبیلہ کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر نبیلہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو لیٹس سی اگر وہ یہاں سے پروگرام کو ٹیک اوور کر سکتی ہیں۔ جی نبیلہ۔ جی تھینک یو ویری مچ آفتاب بھائی، جی آپ مجھے بار بار موقع دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ جی ابھی تو نیٹ اچھا آ رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے بات، جی بالکل۔ جی اوور ٹو یو نبیلہ۔ جی تو ہمارے اگلے جو مہمان ہیں پینلسٹ جناب فاروق طارق صاحب، تو پاکستان کی سول سوسائٹی کا تو بہت ہی متحرک نام ہے، بہت مطلب لاہور میں تو ان کے بغیر کچھ ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ہے، تو بہت انٹرنیشنل نیشنل بہت سی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے روح رواں ہیں، اس کے علاوہ وہ آلٹرنیٹ ممبر ہیں انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی لاویا کیمپسینا، اس کے ساتھ ہی وہ اسٹیئرنگ کمیٹی آف پیپلز ساک کے رکن ہیں، اس کے ساتھ ہی ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس سحر کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے اس کے رکن ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کمیٹی آف ایشیا یورپ پیپلز فورم اس کے رکن ہیں، فارمر کور کمیٹی ممبر آف ساؤتھ ایشین الائنسز فار پاورٹی ایریڈیکیشن، اور ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں انہوں نے نیدرلینڈ میں 8 سال ایگزائل میں گزارے ہیں، اور وہاں میرا خیال ہے کہ نبیلہ کا جو کنیکشن ہے اس میں پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، تو میں وقت ضائع کیے بغیر گزارش کروں گا فاروق طارق صاحب سے کہ وہ ہمیں ہماری مدد کریں کہ یہ جو رویہ ہے ریاست کا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور آپ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ کی بہت لمبی جدوجہد ہے، نہ صرف ایک حکومت کے خلاف یا ایک رجیم کے خلاف، ہمیشہ جتنی بھی ایسی رجیمز رہی ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف ہمیشہ سے ایک بڑی آواز ہے، تو آپ ہمیں رہنمائی کیجئے کہ کیسے اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے ہم مل کر کوشش کر سکتے ہیں۔ جناب فاروق طارق صاحب۔ شکریہ آفتاب، آپ نے یہ جو ویبینار ابھی منظم کیا ہے یہ بڑی ضرورت تھی اس وقت، کہ جیسے ہی ایک حکومت کی جانب سے ایک بڑا متعصبانہ اور جو ہے وہ اشتہار شائع ہوا ہے، اس کا فوری نوٹس لیا جائے
اور اس پہ پروٹیسٹ کیا جائے، احتجاج کی شکل بنائی جائے اور حکومت کو باور کرایا جائے کہ ایسی باتیں میں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ میں جو ہے زمان خان صاحب کی ساری باتوں سے، طاہر نوید صاحب کی باتوں سے متفق ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جاب مذہبی جاب نہیں ہوتا، ہر جاب ہوتا ہے۔ سینیٹیشن کا جو کام ہے یہ کوئی کرسچن کام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان کام نہیں ہے، یہ کام ہے اور اس کو ایک کام کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ مذہب کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں چونکہ ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ بھی ہے، رواج بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے، ریاست کی نیچر میں کوٹ کر یہ بھرا ہوا ہے کہ منورٹیز کو جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری کا درجہ ہی دے رہا ہے، اس سے آگے انہیں آنے نہیں دینا۔ اور ریاست کا جو رویہ ہے منورٹیز کے ایلیٹ کے علاوہ جو عام منورٹیز کے لوگ ہیں ان کی طرف بہت ہی زیادہ ڈسکرمنیٹری ہے، اور یہ اشتہار اس کا ایک ثبوت ہے۔ جو اس سے پہلے آپ نے آغاز میں اور بھی مختلف ایڈورٹائزنگ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، جس میں دکھایا ہمیں کہ جس میں وہ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ پبلش کی گئی، لیکن بعد میں پروٹیسٹ کے بعد وہ واپس لے لی گئی۔ لیکن میں 8 سال، ابھی آپ نے کہا میں 8 سال یورپ میں رہا، میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ تھا، ایک پولیٹیکل ریفیوجی کے طور پہ تھا، جاب تھی نہیں، تو میں نے تو وہاں صفائی کے کام کی، میں مسلم اور وہاں پہ میں نے صفائی کا کام کیا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر ہم یورپ میں جا کر محنت کش طبقہ ایسے کام کر سکتا ہے جو مینول جابز ہے، جس میں زیادہ آپ کو اہلیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے بہت ٹیکنیکل کوئی نئی تعلیم حاصل کی ہوئی تو ہم مینول جاب کے ذریعے بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے سینیٹیشن کے، یہ مینول جاب ہے، ایکسپرٹس چاہیے اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے تمام جو ہے اقدامات ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یورپ میں جو پاکستانی مائیگرنٹس پہلے جاتے رہے وہ بہت سارے صفائی کے، کلیننگ کے اور دوسرے کاموں میں وہ مصروف رہے، اور ہمیں کوئی یہ بتانے میں آر بھی محسوس کبھی نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی برا کام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو وہاں کے کرسچین لوگ تھے وہ ہمیں اچھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ جاب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو رویہ ہے خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں، یہ بہت کنزرویٹو رویہ ہے، یہ ایک رائٹ ونگ سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح زمان خان صاحب نے کہا۔ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کمپینز کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے ٹوبا ٹیک سنگھ سے 2013 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور یقین کریں کہ میرے سب سے زیادہ حامی منورٹیز کے لوگ تھے، کرسچن کمیونٹی کے لوگ تھے، کیونکہ میں اپنی ہر ایک جلسے میں یہ بات کہتا تھا، میں مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں، اس حلقے کے تمام ووٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں کرسچن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور دیگر جو ہے کمیونٹیز ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ جب یہ کہا جلسے میں کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی تو ہے لیکن آپ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کی پوسٹ پہ آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ٹیچر میرے پاس آئے، کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے مجھے گلے لگا کے روتے ہوئے کہا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی شخص کو ایسی بات کرتے سنا ہے کہ ہم بھی ملک کے جو ہے کلیدی عہدوں پر جا سکتے ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ اور یہ پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنا، اگر پاکستان نے برابری کا سلوک کرنا اپنے تمام شہریوں سے، تو اس میں جو ڈسکرمنیٹری جو مختلف دفعات ہیں اور آئین کی جو شقیں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں، تو ابھی زمان خان صاحب نے مدینے کی ریاست کا بتا دیا ہے کہ وہاں پہ تو یہ سارے کام مسلمان ہی کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟
अभी मदीने की रियासत में रहने के लिए मेरी जो बहन पेरिस से आई और उसके साथ जो मदीने की रियासत के लोगों ने किया, जब वो लाहौर के करीब एक जगह पे इंतज़ार कर रही थी, वो हम सब के सामने है। ये मुनाफिकाना रवैये नहीं चलने चाहिए। इस रियासत में तमाम को बराबर का शहरी समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सैनिटेशन में मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और जो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको बराबर का मौके मिलने चाहिए। ये किसी एक कम्युनिटी के लिए वक्फ नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें ऐसे नामों से बुलाना चाहिए जिनका जिक्र शुरू में तार नवीज़ साहब ने किया है। और ये ऐसी बकवास करते हैं यहाँ के हमारे बाज़ लोग, और मैं इसे बकवास ही कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप प्रॉपर इज्जत नहीं करेंगे किसी शहरी की, तो वो भी फिर आपकी प्रॉपर इज्जत नहीं करेगा। आप सबका शुक्रिया कि आपने ये एहतमाम किया इस वेबिनार का, जिसमें मुझे भी बात करने का मौका मिला और अभी और सुनने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फारूक तारिक साहब। और मैं फिर एक दफ़ा कोशिश करता हूँ अपनी बहन नबीला की तरफ जाने के लिए। देखते हैं कि अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड है। जी नबीला, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? नबीला, जी नबीला, आप नबीला को माफी कर दें। आप मेरा ख्याल है कि आफ्ताब भाई मैं आपकी बात सुन नहीं सकी थी जी। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि वाकई नबीला के लिए ना वो कुछ मुश्किल हो रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं बार-बार आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, बस आप सुनते रहें और आफ्ताब आप ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी। और बहुत अच्छा आफ्ताब भाई, आप बहुत अमेजिंगली इसको कंडक्ट कर रहे हैं, जबरदस्त है। मैं आपको सुन रही हूँ, साइलेंट लिसनर के तौर पे मैं हूँ यहाँ, तो आप प्लीज कैरी ऑन रखें। ओके नबीला, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने अगले मेहमान को दावत देना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जनाब कलीम दुरानी साहब, जो कराची रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं इर्तका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये थिंक टैंक है कराची में। और वो उन्होंने अपनी जिंदगी का जो सफर है बहसीयत एक एक्टिविस्ट के, वो 1996 से शुरू किया है, जब उन्होंने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब कलीम दुरानी साहब से कि वो हमारी रहनुमाई करें इस इंतहाई मुश्किल मौजू में, कि इस रवैये को कैसे तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है एक इज्तिमाई कोशिश से। जनाब कलीम दुरानी साहब। मैं आफ्ताब साहब आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, जो बाकी दोस्त इस वेबिनार में आपके साथ शामिल हैं उनका भी इतना ही शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आमतौर पर लोग बात करते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान ना हो। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि वो चीज़ जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जिसका मुशाहिदा करते हैं, जिससे गुजरते हैं, वो उस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, और उस चीज़ को हम इंतहाई गैर अहम समझते हुए उससे आंखें चुराते हैं। हमें नज़र आ रहा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर किस तरह से मौजूद है, लेकिन हम उनसे नजरें चुराते हुए गुजर जाते हैं। इसलिए मैं आपका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इस मौजू को उठाया जिस पर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, आपने मेरी उम्र बहुत छोटी कर दी है। मैंने आपको बताया था कि मैं 1966 से NSF की तहरीक का हिस्सा हूँ। 1968 में अयूब खान साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी, उसका एक मैं बहुत अहम रुकन था कराची में। बल्कि मेरे अपने कॉलेज से अली यावर और मैं वहाँ के मतलब जिन लोगों ने उन जुलूसों को शुरू किया था, उनमें से एक लोग थे। तो मैं शुक्रिया अदा करूं या पता नहीं क्या करूं, आपने मुझे 1996 से करवा दिया। मैं 1965 से जो है वो NSF में अपनी क्लास 9th में जिस वक्त मैं था, उस वक्त से मैं इस सियासी सफ़र का हिस्सा हूं। और मुझे एक खुशी है कि बेशुमार दोस्तों से
बिलमुशाफा रूबरू मुलाकातें रहीं, उनसे सीखने का मौका मिला, उनके कामों को देखने और समझने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कबीले के हम सफ़र थे, जिनसे बराह रास्त रूबरू शायद मेरी मुलाकात ना हो पाई, लेकिन हम कबीला मैं उनका हूँ, रहा और रहूँगा। बात क्या आ जाती है कि जो बातें ज़मान खान साहब ने कही, जिस तारीखी पस मंज़र में रहते हुए, उसको दोहराना, वो उनमें से कुछ चीज़ें मैं समझता था कि मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मेरी नुमाइंदगी, मेरे ख्यालात का इजहार उन्होंने किया, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, उन चीज़ों को दोहराता नहीं। 1975 की बात है, हम घोटकी में हमारा एक यूनिट था और हम जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे जो है वो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के खाकरूबों की, सैनिटरी स्टाफ की एक यूनियन हमने बनाई थी। उसके लिए ख़ास तौर से मैं कराची से घोटकी गया था, वहाँ पर हमने वो यूनियन बनाई। उस यूनियन की जो ख़ास बात थी, मैं बात कर रहा हूँ 1975 की, कि उन्होंने मुझे अपने मकान में ठहराया। शेख बरादरी के मुसलमान लोग थे, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी उसी मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। उन्होंने हमारी पजीराई की, हमने कुछ दिन लगा के यूनियन को रजिस्टर करवाया, वहीं उनके साथ रहे। हमारा खाना पीना उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ था, और मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं पहली मरतबा जो है वो म्यूनसिपैलिटी के इस स्टाफ के साथ जो है वो ट्रेड यूनियन के हवाले से मुझे मौका मिला। उन्होंने अपने घर में मुझे ठहराया, अपने साथ मुझे खाना खिलाया। उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि शेख मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ पर सफाई सुथराई सैनिटेशन के काम में मौजूद थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये हमारा काम जो है ये मौरूसी है। ये अलग बात है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर दूसरे शोबे ज़िंदगी में भी जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम अपने आप को इससे मुताल्लिक़ बताते हैं। बात अब ये आ गई है कि जैसे फारूक तारिक साहब ने कहा, मैं दोहराऊंगा नहीं, वो इतने घटिया अल्फाज हैं, घटिया। मैं कोई तकरीबन 13 या 14 बरस लाहौर में भी मैंने गुजारे हैं अपनी मुलाजमत के हवाले से, तो पंजाबी ज़बान, उसके कल्चर, उसके जो तबाक़ाती और क्लास जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी जो है वो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध मुझे है। तो जिस तरह से नफरत आमेज अंदाज में गुफ्तगू की जाती है, वो किसी तरह से भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं इसमें आम इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहराता। आम इंसान को मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराता। असल काम जो है, असल जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों की है। इस मुल्क के हुक्मरानों ने जिस बुनियाद पर इस मुल्क को कायम किया, उसका इजहार जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब के इंतकाल के फ़ौरन ही बाद ज़हूर पजीर हुआ। करारदाद मकासद जो है बुलाई गई, उसको कानून का हिस्सा बनाया गया, और उसके बाद जो कुछ भी हो सकता था मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ वो किया गया। मैं इस लफ्ज़ सॉरी बुढ़ापा आ गया है, लफ्ज़ अभी आपसे कहता हूँ कि ये अक़लियत का मतलब क्या होता है। यानी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, कतई इत्तेफाक नहीं करता कि अक़लियत जो है वो क्या होती है। हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, ये आइन में लिखा हुआ है, वहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल नहीं होंगे। मुझे कोई साहब अब तक की बात नहीं दिखा सके। वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो सरकारी ओहदों में से कुछ ओहदे जो हैं वो नहीं ले सकेंगे। वो बाद की बातें हैं अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं इस पर बात करूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत तफसील से इस पर बात कर चुके हैं। हम सवाल जवाब के सेशन में और मज़ीद चीज़ें करेंगे, लेकिन ये कि ये अक़लियती हम अपने आप को कहना बंद करें। इससे जो है वो एक तासुर जो है वो बनना शुरू होगा कि अक़लियत क्या माने रखती है। अक़लियत नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं,
हम पाकिस्तान के शहरी हैं, बराबर की हैसियत के शहरी हैं, और किसी भी नौयत की मुलाजमत में हमारा जो है वो हिस्सा हो सकता है। हम कोई भी मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, वो भी सफाई के काम में जो है वो मौरूसी किरदार के तौर पर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं। कोई क्रिश्चियन है, अगर वो मौरूसी तौर पर उस काम में है और आज वो उससे बेहतर पोजीशन में है, मतलब मेरे साथ हमारे एक दोस्त थे, मेरी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, गिल उनका सरनेम था, वो मतलब बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, और उन्होंने जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अहम जो है शोबों को संभाला हुआ था, जिसपे मैनेजमेंट हमारी भरोसा करती थी। तो ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि आपको जो है वो जेनिटोरियल स्टाफ के तौर पर ही जो है वो जगह दी जाएगी। आप ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें तो आप देखें कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है, और वो इंसान जो है वो अगर रियासत उसकी जिम्मेदारियों को, सेहत की, तालीम की, रिहाइश की जिम्मेदारियों को जो कि रियासत की जिम्मेदारी है, उसको मुकम्मल तौर पर पूरा करती है, तो ये तमाम इंसान उस रियासत की तरक्की, खुशहाली के लिए बराबर के जो है वो हिस्सेदार हैं। और ये सब रियासत को भीख मंगा बनाने की बजाय रियासत को खुशहाल बनाने में अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि रियासत पर काबिज जो लोग हैं वो गैर आइनी तरीक़े इख्तियार करके रियासत के इदारों पर और रियासत के फैसलों पर काबिज हैं, इस वजह से वो समझते हैं कि आम इंसान तक असल कानून, आइन की अगर तालीम पहुंचेगी तो फिर सवाल उठेंगे। वो इन सवालों से अपने आप को दूर रखने के लिए, आम इंसान को ला इल्म रखने के लिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि अवाम हमारे जाहिल हैं। मैं उस पर शदीद एहतजाज करता हूँ, अवाम हमारे जाहिल नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनको किसी चीज़ से ला इल्म रखेंगे और उसकी बजाय मुसलसल गलत तरीक़ों से गलत जो है वो इस मुल्क की तारीख, सकाफत, तहजीब के बारे में जो है वो बयान करते रहेंगे, तो जब लोगों को पता नहीं होगा तो वो उसी तरफ जाएंगे जो मौजूद है उनके सामने। लिहाजा हम सब दोस्तों की कोशिश ये होनी चाहिए कि एक तो ये हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि तमाम इंसान जो हैं वो यकसा हैसियत के हामिल हैं, उनका मज़हब, रंग, नस्ल कोई भी हो। और ये आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है तहरीक अपना जो है वो शिद्दत प्रचार करती जा रही है कि आप किसी से भी रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन, नफरत तो बहुत बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन उनसे नहीं कर सकते। उस पर जो है वो दुनिया भर एहतजाज करने के लिए खड़ी होती है, और होगा, हमारे मुल्क में भी होगा। इन मामलात पर हम जो है वो सड़कों पर निकलकर यकीनन एहतजाज करेंगे और इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है वो इकट्ठा होंगे। हालत ये है हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी, उसका मैं सिर्फ एक छोटा सा जायजा पेश करना चाहता हूँ कि हमें इससे निकलना होगा कि वो जो CPO साहब जो हैं, अगर मैं सही डेजिग्नेशन उनका बयान कर रहा हूँ, न भी बयान कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो जहनियत है और वो हाईवे पर होने वाले रेप केस के बारे में जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ये सिर्फ उस आदमी के ख्यालात का या उसकी जहनियत की अक्कासी नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों और उनकी जानिब से हम पर मुसल्लत किए गए जो उनके नुमाइंदे हैं, ये उस पूरी एक सोच को हम पर जो है मुसल्लत करना चाहते हैं, जिससे हमें निकलना होगा। और ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे हुक्मरानों से या उनके नुमाइंदों से हमें किसी खैर की जो है वो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ताहिर नबी साहब जो असेंबली के मेंबर भी रहे, उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में ये बात बताई कि उन ऐवानों में पहुंचने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐवान जो है उसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा मैं आखिर में अपनी बात को समेटते हुए यही कहूँगा कि हम सारे पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो यकसा इंसान हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमेशा इस मौजू पर, इस मुद्दे पर जो है उसने अपना स्टैंड लिया है, जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसके वसाइल हैं, जितनी उसकी पहुँच है। और मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे, उनके एक मजबूत नाम है जिन्होंने आवाम के इन मसाइल पर जो है वो अपनी तवज्जो दिलाई।
इस जद्दोजहद को जो है वो एक इज्तिमाई सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में जो है वो कायम करने की कोशिश में कामयाब हुए। ज़रूरत यह है कि आप सब, अगर आप सब, हम आपकी तंजीमों में, आप हमारी तंजीम के साथ मिलकर अगर इन मौज़ूआत पर ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा पुरज़ोर तरीके से काम को अपने जारी रखें तो शायद नहीं तो इस बात का इम्कान है कि देर या जल्द हम जो है वो अपने इंसानी हुकूक को यकसा, इंसानी हुकूक के खिलाफ होने वाली जो इंसानी हुकूक के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हैं और जो इस तरह से नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके खिलाफ हम जो है एक ऐसा माशरा बना सकेंगे जिसमें सारे इंसान बराबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कलीम दुरानी साहब, आपने इस मौजू की बहुत सी जिहतों पर बात की है और हमारे लिए बड़ी रहनुमाई आपने फराहम की है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम साथियों की तरफ से आपका, और माजरत ख्वाह हूँ कि जो मेरा टाइपो की वजह से कुछ डेट कुछ आगे पीछे हो गई, तो वैसे तो शायद अगर किसी और के लिए होता तो शायद कोई खुश भी होता ये डेट ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और मैं जो आपने गुफ्तगू की है उसमें से कुछ सवालात जरूर निकले हैं और मैं उन सवालों की तरफ जाता हूं। मैं पहला जो है अपनी बहन सफीना से सवाल करना चाहता हूं कि आपने, क्योंकि ये कराची में अभी लेटली ये ऐड जो है वो कराची के एक इदारे की तरफ से जारी हुई और आपने एक लेटर शेयर किया था जो एक कराची की तंजीम ने लिखा है सरकार को, तो इसकी रोशनी में आप हमें बता सकती हैं कि कोई पेशरफ्त हुई इस ऐड को वापस लेने के लिए या इसको कंडेम करने के लिए, या सिविल सोसाइटी ने किस हद तक इस पे स्टेट के साथ या रियासत के साथ या जो इदारा है उसके साथ बातचीत की है? जी सफीना जावेद साहब। देखें, ये जो लेटर है ये तंजीम ने दिया है हमारे सीएम को, और सीएम साहब अभी इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, बारिश का सिलसिला है और वो सारी चीज़ें, तो अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और अच्छी होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यही कह रही हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी तंजीमें पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, जो इस मौजू के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है। जैसे मैरीगिल का मैंने अभी नाम बताया आपको, स्वीपर आर सुपर हीरो, उनकी एक बहुत अच्छी इसमें काविश है। सैमुअल प्यारा साहब वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब उनके साथ मिलके कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पैगाम को आगे पहुंचाया जाए। और उन्होंने यही बात कही थी कि आने वाले दिनों में वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2014 का, जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का किया था, और उसके बाद भी एक और प्रोटेक्शन आया है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल के हवाले से, तो उसको लेके जल्द ही वो कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ऊपर कोई ना कोई आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे कि कोई इसके ऊपर एक्शन, मस्बत कार्रवाई हुई है। थैंक यू सफीना। मैं अब जाना चाहता हूँ ताहिर नवीद चौधरी साहब की तरफ। ताहिर साहब, आप पंजाब असेंबली के मेंबर भी रहे, और क्योंकि आप एक ऐसी तंजीम से आपका ताल्लुक था जो बहुत ही वाइब्रेंट थी और अक़लियती हकूक़ और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से आपकी तंजीम की आवाज़ बहुत मजबूत थी, तो जब आप असेंबली में मौजूद थे और आप इस किस्म के इश्यूज पर असेंबली में बात करते थे तो आपको किस किस्म की रिएक्शन का सामना करना पड़ता था आपके बाकी जो साथी होते थे असेंबली में मौजूद? जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब। एक तो मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों से, मेरी तो पहली मुलाकात है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगर सोसाइटी में फरूक तारक साहब जैसे लोग, ज़मान खान जैसे लोग, कलीम दुरानी जैसे लोग, अगर ऐसे लोग हों तो यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बातें आज हम कर रहे हैं ये बहुत जल्द जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे तसद्दुक़ जिलानी साहब का जो फैसले की बात हो रही है, वो
1914 وہ 2014 میں ہوا, 6 سال گزرنے کے باوجود آج تک امپلیمنٹیشن ہی نہیں اس پہ ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے یہ رویے جو ٹھیک نہیں ہیں, اور جس طرح اپنا ایکسپیرینس فروخ طارق صاحب بتا رہے تھے, میرا ایک یہ بھی اس سوسائٹی سے میں سوال کبھی کبھی کرتا ہوں, بہت سارے فورم پہ بھی کرتا ہوں, کہ بارے 95% ایسے گھر ہیں جہاں پہ کوئی نوکر کام نہیں کرتے. تو کیا ہماری مائیں بہنیں جو وہاں پہ صفائی سینیٹیشن کا کام کرتی ہیں, ہم انہیں بھی چوڑا کہہ کے پکاریں گے؟ ہم انہیں بھی وہ ورڈ ان کے لیے استعمال کریں گے نہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے؟ پھر اسلام میں اس بات پہ بھی بڑا زور دیا کہ صفائی نصف امان ہے. تو جب نصف امان, صفائی کرنا نصف امان ہے, میں سمجھتا ہوں 50 نمبر تو جنت میں جانے کے لیے ویسے مل گیا. اور پھر میں جس دن یہ آفتاب بھائی نے مجھے فلائر بھیجا اور میں نے دیکھا, تو بانو قدسیہ کی ایک بات مجھے بہت اچھی طرح یاد آئی. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ وہ معاشرہ ہے, افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں, گندا کہتے ہیں. اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں, اس سوسائٹی میں میرا بھائی کو کہیں انسپیکٹر پولیس ہے, کہیں اسسٹنٹ کمشنر. گجرات میں ہماری ایک بیٹی اسسٹنٹ کمشنر تھی منورٹی, اسے یہ چیزیں فیس کرنی پڑی. وہ ہم قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. یہ جس طرح آفتاب بھائی آپ نے اسمبلی کا کہا, ہم قبول کرنے کے لیے ہی اس بات کو تیار نہیں. میں نے ایک دن بات کر بیٹھا, جو گوجرا ایشو تھا, جب اس کی رپورٹ آئی تو میں اس پہ اسمبلی کے اندر میں نے بات کی. جب تو میں نے کہا کہ بہت سارے دوست کسی ایک بندے کے نہ کردہ گناہ کی سزا پوری آبادی کو دیتے ہیں. تو میری وہ, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک خاص طبقہ کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے گھر جلائے گئے تھے, میری وہ بات کرنے کے بعد میں جب باہر نکلا تو میرے جو وہاں پہ ایون ملازمین بھی تھے جو روزانہ جب میں جاتا تھا انہیں 500 روپیہ دیتا تھا, بڑا سلوٹ کرتے تھے. انہوں نے جب میں نے بائبل کی بات کی, میں نے انہیں پتا چلا, ویسے میرے نام سے تو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کرسچن ہے, میرے ساتھ سلام لینا کسی نے گوارا نہیں کیا. اور یہاں تک نہیں, میرا بیٹا ماشاءاللہ 4th ایئر ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے. تو ایک سکول میں داخل کرایا, وہ پہلی کلاس میں تھا, تو وہاں پہ پرنسپل صاحب کا بیٹا بھی تھا جو سکول کے مالک تھے. تو پرنسپل کا رویہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو بدماش ہے. میں نے کہا افسوس تیری مطلب اس پڑھے لکھے ہونے پہ, پرنسپل ہیڈ ہونے کی, کہ جو پہلی کلاس کے اپنے اسٹوڈنٹ کو تو آج بدماش کہہ رہا ہے. میں نے کہا خدا تجھے زندگی دے, مجھے بھی دے, کبھی وقت ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا جسے تو بدماش کہہ رہا ہے. اور خدا من کا شکر ہے 4th ایئر میں اب وہ MBBS کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو رویے ہیں ان کو چینج ہوتے ہوئے ٹائم ضرور لگے گا, لیکن آپ تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ آگ بجانے والے لوگ ہیں. تو اگر ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے, کوشش کریں گے, تو ہمارا جو خواب ہے, کیونکہ اصل میں ہیومن رائٹس, منورٹی رائٹس جو ہیں وہی ہیومن رائٹس ہیں. منورٹی رائٹس اور وومن رائٹس ہی جو ہیں وہ ہیومن رائٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ جس طرح جدوجہد کر رہے ہیں اور کلیکٹیولی اگر ہم کوشش کریں گے تو چینج ہمیشہ جوائنٹ ایفرٹ سے آتی ہے. تو یہ ہم پورا امید ہیں, اور یہ ملک ہمارا ہے, اور ہمیں بار بار اقلیت والوں کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے محب وطن ہیں. حالانکہ ریکارڈ کو دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک کسی ملک دشمن سرگرمی میں, کسی دہشت گردی میں کبھی بھی کوئی منورٹی کا بندہ جو ملوث نہیں ہو. اور پھر بھی بار بار ہمیں, اور پھر بہت بڑی سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں دوست یہاں پہ, بہت بڑی جماعت, ہم بھی ان کے لائز پارٹنر تھے, پاکستان پیپلز پارٹی, لبرل پارٹی, اور جو آئین کے آرٹیکل 25 کے بعد جو قدغن لگائی گئی ہے نا 41 میں کہ یہ بن نہیں سکتے, ہم
सरबराह नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते, वो भी उनकी मेहरबानी है। और वजीर आजम ना बनने की कतकन जो है वो 18वीं तरमीम है, वो भी उनकी मेहरबानी है। तो जहाँ पे इतनी लिबरल जमातें जिनसे हम तवक्कुआत रखते हैं वो इस तरह के कवानीन बनाएंगी, वो तफरीक डालेंगी, तो क्या मैं समझता हूँ कि एक खून का रंग है और बेहतर परफॉर्म करने वाले लोग हैं। क्या AR कर्नेलियस का नमल बदल आप देखते हैं? क्या हम भगवान दास का नमल बदल उस लेवल पे देखते हैं जिन पे एक करप्शन का कभी कोई इल्जाम नहीं आया, जिन्होंने इस तरह की सर्विसेज दी और उनके मुकदमात आज भी वो साइटेशन जो है वो कोर्ट होती है फैसलों में। तो मिनॉरिटी के बंदे मैं समझता हूं कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा हुब्बे वतनी से काम करते हैं। थैंक यू। लेकिन हमें ये कोशिश जो काविश आज आप आफ्ताब भाई कर रहे हैं, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, अपनी सतह पे भी रखेंगे, और जिस तरह दोस्तों ने कहा कि कलेक्टिवली तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलके अगर ऐसे मसलों को उठाएंगी तो उनका बेहतर हाल निकलेगा। थैंक यू वेरी मच ताहिर नवीद चौधरी साहब। अब मैं जमान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी रहनुमाई करें कि आपका बहुत वसी तजर्बा है जर्नलिज्म में भी, और आपने HRCP के साथ भी काम किया, और आप साउथ एशियन जो ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, उसमें भी आपकी शमूलियत रही है। तो क्या साउथ एशिया में इस किस्म की कोई सूरत हाल मौजूद है, और क्या पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इंसानी हकूक के कारकुन साउथ एशियन साथियों से कुछ सीख सकते हैं ताकि हम अपनी इस जिद्दोजहद को ज्यादा मजबूत कर सकें? जनाब जमान खान साहब अनम्यूट कर लें, जमान अपना माइक खोल लें। नहीं, माइक आपका नहीं खुला जमान जी। अब ठीक है, ये आप खोल गए, अब ठीक है ना? जी, मैं अर्ज करूंगा, देखें ये एक बुनियादी बात है कि ये मसाइल हमारे नहीं सारे पसमानदा मुल्कों में है, बल्कि यूरोप में भी है। तो इनको डील करने का ये जो अपना माजी के तारीख डाक जो पहलू हैं उनसे जान छुड़ाने का और रोशन मुस्तकबिल बनाने का एक ही तरीका है कि हम लोग मुसलसल जदोजहद करें। आपको याद होगा, मैं पाकिस्तान में ही मिसालें दूंगा कि जहाँ भी लोगों ने, पैसे हुए लोगों ने, मजहबी अक़लियतों ने, और सब ने मिल के जदोजहद की है, तो हमने अपना टारगेट अचीव किया है। आप देखें कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में एक मूव चली थी कि शनाख्ती कार्ड पे मज़हब का खाना लिखा जाए, याद है आपको? आप तो उसमें शामिल रहे हैं, उस तहरीक में, जदोजहद में। तो जब हमारे जो भाई थे, हमारी जो मजहबी अक़लियत थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की तो सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। अभी रिसेंटली मिसालें देखें आप कि लोगों को उठा के ले जाते थे और पता नहीं चलता था, कई साल पता नहीं चलता था, लेकिन रिसेंटली आप देखें 2-3 मिसालें कि लोगों ने इकट्ठे हुए और जुडिशरी ने भी बात का साथ दिया, तो फौरन 1-2 दिन 4 दिनों बाद बंदा जो वापस आ गया। तो मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया में भी, दुनिया में भी पहला जो इसका सबक है, पहला जो लेसन है वो ये है कि हमें इत्तेहाद करके जो भी पसमानदा लोग हैं, जो भी मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो भी पिसे लिखे हुए लोग हैं, किसी भी मज़हब से, किसी भी अपना जदोजहद करनी। और मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंध में आप लोगों को चाहिए कि ये आप रेप पे जुलूस निकला है, तो इस पर भी आप सारे NGOs को मिलाएं, सिर्फ मिनॉरिटीज़ ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, वो तमाम लोग जो आपके ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं, आपकी जदोजहद के पुराने साथी हैं, उन सबको चाहिए कि इसके बारे में एजुकेट करें, इसके बारे में कैंपेन चलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इनको शर्म दिलाएंगे, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उन्हें ज़रूर इस बात का अजाला करना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बताया कि फ़ौज ने भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट की थी, और भी आपने मिसालें दी, उन्होंने भी ड्रॉ करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है
जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक जद्दोजहद नहीं करेंगे, पंजाबी में कहते हैं कि रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं देंगी, है जी। तो बस पहला और आखिरी जो मैं समझता हूँ वो जद्दोजहद का असूल है कि आप इत्तेहाद करें, सबको मिलाएं, बड़े से बड़ा अपना एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं। आपका ही मसला नहीं, ये मेरा भी मसला है। मुझे शर्म आती है एक तौर पाकिस्तानी जब मैं देखता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मेरे पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के साथ, पसमानदा तबकात के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि हमें आप और आपसे भी गुजारिश ही है कि हमारे जो पिसे हुए दोस्त हैं जो इस पेशे में हैं उनको निकालें। साइंस ने बड़ी मदद की है। आप देखें कि वो कंसेप्ट जो हमारे बचपन में था सैनिटरी का और सफाई का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग अपने घरों में करते हैं, यूरोप में नहीं हम सब करते हैं। आप तो यूरोप में रहते हैं, आपको पता है कि आपका कोई आगे तो नहीं बाथरूम की किस्सा आप खुद ही करते हैं। आप अपने घर की भी सफाई खुद करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खाना भी खाते हैं, तो अपने काम यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी मैसेज वही है, बुनियादी मेरा तजर्बा जो कहता है वो ये है कि इकट्ठे हों, एजिटेट करें, पुरअमन जद्दोजहद करें। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं, एक आध दिन में, एक दो दिनों में आप प्रेस क्लब के बाहर आप एहतजाज करें, अपने साथियों को बुलाएं, कराची के सिंध के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन के, दूसरी NGOs के, मिनॉरिटीज़ के जितने लोग हैं, तो ये ज़रूर मैं सब। और इसमें देखें बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग मिनॉरिटीज़ के लोग उनके चमचा बन जाते हैं। जब उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं तो वो अपना उनका रवैया वही हो जाता है, अपनी मिनॉरिटी अपने अपने हम मज़हब के तरफ वही नखवत का रवैया, वही गुरूर का तकब्बर का रवैया, और वो भी स्टेटस को से फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये स्टेटस को रहे, गुलाम रहें। वो भी आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं करते, उनको भी शर्म दिलवानी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग असेंबलियों में जाएँ, ऐसे लोग अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं, उनमें भी ऐसे लोग जाएँ जो वाकई इंसानी हुकूक में और कानून की बराबरी में और सब पाकिस्तानियों को बराबर समझते हैं। वो अगर जाएंगे तो हमारे काम आसान, ये आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन ये जद्दोजहद चाहता है और इकट्ठे जद्दोजहद करता है, इत्तेहाद चाहता है। ये सारे आप देखें, सारे साउथ एशिया के ममालिक की मिसाल है, बल्कि पूरी दुनिया की मिसाल पे। अब अभी जो अमेरिका में हुआ, कारे को एक को मारा, कुछ जिस तरीके से लोग उठे हैं तो उन्होंने हिला के रख दिया उन सारे। ये आज 2-4 सालों की जद्दोजहद है। तो हमें चाहिए कि हम भी कहें कि भाई सारे पेशे सबके लिए खुले हैं और मेरिट पे जो भी आना चाहते हैं मज़हब की बुनियाद पे तफरीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप कराची दोस्तों से, सिंध के दोस्तों से, कि वो इसे एजिटेट करें। शुक्रिया। थैंक यू ज़मान साहब। मैं अब फारूक तारिक साहब की तरफ चलता हूँ। फारूक, ये एक ऐड का इशू नहीं है, ये एक लार्जर इशू है। इसका ताल्लुक सिर्फ मजहब के साथ नहीं है, मेरी नजर में इसका ताल्लुक कास्ट और क्लास के साथ भी है। और आपकी क्योंकि जिद्दोजहद ही इसी किस्म की है कि जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और आपका काम क्योंकि मजदूरों के साथ अपनी मिसाल आप है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि कैसे दुनिया के मजदूर जब इकट्ठे हुए थे उन्होंने तब्दीली के लिए काम किया था, तो कैसे पाकिस्तान के जो मजदूर हैं, पाकिस्तान के रोशन ख्याल जो तबके हैं, जो सिविल सोसाइटी जब इकट्ठी होगी तो कैसे उन्हें मिलके इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना, क्योंकि ये सिर्फ अक़लियत का मसला नहीं है, एक ऐड है, लेकिन ये एक माइंड सेट है जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है और रियासत उसकी रिफ्लेक्शन है। प्लीज फारूक तारिक साहब। कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक सोच का इजहार है जो मुआशरे के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। जो थोड़ा ज़्यादा मजहबी बनना चाहता है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्शनरी हो जाता है, रुजती सोच को जो है वो प्रमोट करने लग जाता है, जिसका इजहार हमें बार बार मुख्तलिफ इस किस्म की ऐड की सूरत में भी नज़र आता है। देखिए, मैं तो मिसाल देता हूँ उकाड़ा की। वहाँ पे पिछले जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए उसमें अंजुमन मुजारिन पंजाब जो मुजारों की एक कैंपेन है, उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसी यूनियन काउंसिल जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ हम चेयरमैन का इलेक्शन
ایک کرسچن کو لڑائیں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایشو مذہب کا نہیں ہے، جو زیادہ کام کرنے والا کسی مذہب سے بھی ہے وہ ہمارا چیئرمین بنے گا. اور پھر انہوں نے ایسا کیا، اور وہاں سے کرسچین مسلم اکثریت والی یونین کونسل سے چیئرمین منتخب ہوا. آج بھی وہ سارے لوگ اکٹھے ہیں. یہ جو اتحاد ہے نا، جس کی بات بار بار زمان خان صاحب نے کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے. جب تک اتحاد کی مسلم، کرسچین اور دیگر جو یہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان کا اتحاد مل کر جدوجہد کرنے کا کوئی طریقہ کار سامنے نہیں آئے گا، ہم زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ صرف لیکچر کرنے سے نہیں ہوگا، اس کی عملی مثالیں ہمیں جو ہے وہ سامنے لانی ہوں گی. مثلا گوجرا کی بات کی ابھی طاہر نوید صاحب نے، وہاں جب لوگوں کے گھر گرائے جا رہے تھے تو میں نے فون کیا ٹوبا ٹیک سنگھ میں، قریب ہی تھا، اور میرے ساتھی تھے شبیر صاحب اور طارق، دونوں مسلمان کمیونٹی سے تھے. وہ فوری پہنچے اور انہوں نے بے شمار گھروں کو جلنے سے بچایا. اور اسی کیس میں طارق محمود جو آج بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ 4 ماہ جیل کاٹ کے آیا. تو لوگوں نے اسے جیل میں پوچھا تم کرسچین ہو؟ اس نے کہا نہیں میں کرسچین نہیں ہوں. تو تم کیوں آئے ہو جیل میں؟ اس نے کہا میں ان کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے انہوں نے اس کیس میں پھنسایا، برابری کرنے کے لیے کہ کچھ کرسچین پکڑے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہم جو ہے وہ پکڑے. لیکن وہ اس طرح ہمارے ساتھیوں نے اس ایک رول بھی ادا کیا. اور اسی طرح میرے سب سے زیادہ ووٹر کرسچین کمیونٹی سے تھے. تو یہ تو ایک اتحاد کی بات ہمیں پریکٹیکلی سامنے لانی ہوگی. اس سوچ پر ہتھوڑے مارنے ہوں گے کہ کوئی کام گھٹیا ہے اور کوئی کام اچھا ہے. کام ہے. جب تک کام کو آپ لیبر نہیں سمجھیں گے، اب لیبر جب آپ لفظ کہتے ہیں تو یہ نہ کرسچین لیبر ہے یا نہ مسلم لیبر ہے. جس طرح یہ کمپیوٹر ہمارے سامنے یا ٹیلی فون ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی مسلم کمپیوٹر ہے یا مسلم ٹیلی فون ہے یا یہ کرسچین ٹیلی فون یا کمپیوٹر ہے؟ کچھ چیزیں جو مذہبی ہو نہیں سکتی، اور یہ ہر چیز کو مذہبی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ماڈرن پیریڈ میں ریاست کا قیام مذہبی نہیں ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، تمام شہریوں کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے. یہ اس طرح نامنل علامتی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اظہار اس کے قوانین کے ذریعے، اس کے آئین کے ذریعے، اس کی پریکٹس کے ذریعے، اس کے رواج کے ذریعے، اس کی سوچ کے ذریعے، اس کے طریقہ کار سے ہمیں نظر آنا چاہیے. پھر جا کے ایک ہم برابری کی بات کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے. میں زمان صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ سوچ ہم ختم کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی. میں تانوی صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. دیکھیں آج یہ لاہور میں CCPO نے جو بلیمنگ دی وکٹمز کا سلسلہ کھولا تو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کی مذمت کی. آج وہ نہیں ہے سلسلہ جو اس سے پہلے تھا کہ خبر ہی لیٹ پہنچے گی. آج تو خبر منٹوں میں پہنچتی ہے. اور یہ آپ نے ابھی ایڈورٹائزنگ کراچی میں چھپی اور اس پہ ایک ویبینار کر دیا، پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ بات تو پہنچے گی تو بات چلے گی نا. ہم یہ کہتے ہیں ہماری بات میں اثر ہو نہ ہو، ہم بات کو اچھال دیں، ہوا میں لے جائیں، بات کریں اس کے اوپر کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کبھی نہ کبھی تو اس کا اثر جو ہے وہ سامنے ضرور آئے گا. شکریہ. تھینک یو فاروق طارق صاحب. میں اب گزارش کرنا چاہوں گا کلیم دورانی صاحب سے کہ آپ HRCP کے ساتھ منسلک ہیں اور پاکستانی ریاست میں بہت سارے جو کووننٹس ہیں، انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، ڈیکلریشنز ہیں اور جو دستاویزات ہیں ان پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے جو قانون ہیں، ڈیکلریشنز ہیں، کووننٹس ہیں، وہ انسانی برابری کی بات کرتے ہیں.
وہ ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ HRCP کا کام اور جو انٹرنیشنل جو لاز ہیں جن پہ پاکستان نے دستخط کیے ہیں اس میں HRCP کس حد تک جو ہے وہ ریاست کو اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ جب ریاست نے ان قوانین پر دستخط کیے ہیں تو ریاست کو ان کا احترام بھی کرنا چاہیے. جی کلیم درانی صاحب. آپ نے بہت درست نشاندہی کی HRCP کے کام کی, اور اس حوالے سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے بین الاقوامی سطح پر ان معاملات کو اٹھانے کی, لے کر جانے کی, اور ہماری ریاست کو اس بات کا احساس دلانے کی کہ انہوں نے دنیا بھر میں جو قوانین ہیں انسانی حقوق کے متعلق ان پر جو دستخط کیے ہیں ان کو فالو کریں. اور جہاں جہاں پر اس بات کے شواہد سامنے آتے ہیں کہ وہ ریاست جو ہے وہ ان قوانین کو فالو نہیں کر رہی ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے, وہاں پر آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں کچھ بھی اگر میسر نہ آئے تو ہمارا ایک بیان جو ہے مذمتی یا اس کی وضاحت کے حوالے سے روزانہ موجود ہوتا ہے HRCP کی اپنی ویب سائٹ پر, اور اس حوالے سے ہم مسلسل پورے پاکستان میں دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اس قسم کی ڈسکریمنیشن کے خلاف, اس قسم کی جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ریاست کی جو غیر ذمہ داریاں ہیں اس کو باقاعدہ سامنے لے کر آتے ہیں. ہماری لڑائی نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں جد و جہد کرنی ہے. ہمیں جد و جہد میں نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ جو آپ نے دستخط کیے ہیں جس چیز پر, جو تحریر پڑھنے کے بعد آپ نے دستخط کیے ہیں, کم سے کم اس کو دوبارہ پڑھیں, اس کو دیکھیں کہ اس پر کس طرح سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, ہونا چاہیے تھا. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جن کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان مسلسل ٹریننگ کا جو ہے وہ انتظام رکھتا ہے مختلف حوالوں سے, مختلف طریقوں سے, کہ وہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوں, ان قوانین کے بارے میں, ان حقوق کے بارے میں ان کی جانکاری ہو, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, اور پھر جو ہے وہ ریاست کے سامنے اس بات کو اجتماعی طور پر رکھیں, ایک بڑے مجمع کے طور پر اس بات کو رکھیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے کسی عمل کو ریاست کی جانب سے تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ ہماری کوشش ہے, یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مکمل کامیاب تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, لیکن کامیابی کی منزل طے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی سپورٹ سے, کہ بہت سارے وہ قوانین جو آج سے 40 سال پہلے موجود نہیں تھے وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی HRCP کی مشترکہ کوششوں سے قوانین کا اسمبلیز میں ان کو اٹھایا گیا اور قوانین کا حصہ بنایا گیا. تو آپ نے جو بات کہی ہے یہ ایک عمل ہے, اس عمل کو HRCP مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے, اس میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر کے وہ چلنے کی کوشش کرتی ہے, یا دوستوں کی طرف سے جس طرح سے آپ نے بلایا ہے, دوستوں کی طرف سے آنے والی دعوت پر ان کے ساتھ جو ہے شامل ہوتی ہے. مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آخری نتیجے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جن ٹریٹیز پہ دستخط ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی جانب نشاندہی کی جائے, اور عام انسان کی جو ہے وہ ایک ٹریننگ کی جا سکے جو پھر اٹھ کر کھڑا ہو ساتھ میں, اور ان خلاف ورزیوں کے حوالے سے پہلے جانکاری اس کی ہو اور پھر وہ اس جدوجہد کا حصہ بنے جس سے نتائج پازیٹیو حاصل ہو سکیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں گا کہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اس میں جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے کہ ریکمنڈیشنز آئیں گی, اگر وہ آپ ہمیں بھیج دیں تو HRCP کے حوالے سے ہم اس پر کوئی نیوز بھی جو ہے وہ بنائیں گے, اور اس پہ ریزولوشنز جو ہے جہاں جہاں پہ بھیجے جا سکتے ہیں وہ بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے. پلیز اس کو دیکھیے گا. بہت شکریہ کلیم درانی صاحب, آپ سب دوستوں نے بہت ہی پرمغز گفتگو کی ہے. اس
एक अहम मौजू के मुख्तलिफ जिहतों पर आपने रोशनी डाली है और हमारे लिए बहुत सा जो उम्मीद का पैगाम है वो आपने दिया है। बहुत सी पुरुम्मीद बातें की हैं कि हम मिलकर कैसे इस रवैये को ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ अक़लियत का मसला नहीं है या सिर्फ एक ऐड का मसला नहीं है, ये एक इज्तिमाई सोच का मसला है कि कैसे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी उनको बराबर समझा जाए और उनके साथ रियासत बराबर का सलूक करे। आज की ये जो इवेंट है इसके आखिर में हमने कुछ करारदाद जो रेजोल्यूशंस हैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो अगर कोई रेजोल्यूशन आप समझते हैं उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो आप उसकी निशानदही ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसको बाद में उसमें वो आपकी आराज़ शामिल करके तो फिर हम बाकी दोस्तों को भेज सकें। कलीम साहब आपको डेफिनेट मिलेगी, बाकी सब दोस्तों को भी। तो मैं ये रेजोल्यूशंस आपके सामने पेश करता हूँ। आज के सेशन के शुरू का मुकर्ररीन की सैर हासिल गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झैल सिफारिशात पेश करते हैं। नंबर 1, मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की जानिब से शाया होने वाले मजहबी तफरीक पर मबनी इश्तहारात आइन की दफ़ा 27 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ऐसे तमाम इश्तहारात जिनसे मजहबी तफरीक और नफरत का इजहार हो उनकी इशायत फौरी तौर पर बंद की जाए। नंबर 2, गो के आइन की दफात 5, 25 और 27 शहरियों की बराबरी की बात करती हैं, लेकिन आइन में कुछ ऐसी दफात भी मौजूद हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, लिहाजा हम सिफारिश करते हैं कि आइन में तरमीम के जरिए ऐसी तमाम दफात को ख़त्म किया जाए। नंबर 3, ये खुशाइंद अमर है कि रियासत पाकिस्तान ने बहुत से बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक की हुई है, लिहाजा हम रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का एहतराम करते हुए मजहबी तफरीक पर मबनी रवैयों के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दामात करें ताकि अक़लियतें एहसास कमतरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए बगैर वतन अजीज में जिंदगियां गुजार सकें। नंबर 4, हम सिफारिश करते हैं कि तमाम अक़लियती, मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा ऐसे नफरत अंगेज इश्तहारात पर फौरी रद्द अमल का इजहार करें और ऐसे रवैयों के खात्मे के लिए आवाज उठाएं। नंबर 5, हम ये भी सिफारिश करते हैं कि मुक़्तदर अक़लियती शख्सियात की वतन अजीज के लिए खिदमात को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए ताकि अक़लियतों से मुतल्लिक़ मनफी रुझानात के खात्मे में मदद मिल सके। नंबर 6, और यह आखिरी करारदाद है, अमूमी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में अक़लियतों की कवरेज इंतहाई महदूद है, लिहाजा हम सिफारिश करते हैं कि मीडिया अक़लियतों को ज़्यादा जगह दे ताकि पाकिस्तान में मौजूद मजहबी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब, आप इन करारदादों को एक प्रेस रिलीज की सूरत में हमें भिजवा दें। हमारा डेली पेपर है जद्दोजहद ऑनलाइन, उसमें हम इसको इसी तरह शाया करेंगे जिस तरह अभी आपने प्रेजेंट किया है, और मैं पर्सनली तमाम करारदादों की हिमायत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं गुजारिश करूँगा अगर आप कि आप मिनॉरिटी कमीशन के साथ भी ये मसला आपको उठाना चाहिए था, पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन उनकी तवज्जो भी इसकी तरफ। जी, मेरा भी यही था कि जितने भी कमीशंस बनने में, जैसे अभी सिंध में हमने काम किया था जस्टिस माशा के लिए, इसी तरह से सैनिटरी वर्कर्स के साथ एक मसला हुआ था, उसे ड्यूज नहीं मिल रहे थे और वो उसकी डेथ हुई थी सारी काम करते हुए। तो जस्टिस माशा ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो सैनिटरी वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से सारी चीज़ों को फराहम करती थी। तो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो कमीशन बने, चाहे वो कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स हैं और जस्टिस माशा का है, तो वो ज़रूर इसके ऊपर अपना रोल अदा करें। और सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि इससे पहले भी हमारे पास आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अपनी रिटायरमेंट की एज को बढ़ा नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो अपने तौर के ऊपर जो उनका ग्रेड है
وہ اپنے طور کے اوپر کوشش کر کے اگلے گریڈ میں آ جاتے ہیں. تو جو سینیورٹی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر وہ آئے اور باقی انہوں نے پھر ساری گورنمنٹ آفیشل کو ریورٹ کیا تھا. تو اسی طرح میں یہ کہتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے تو وہ بہت جلد اس کا نظر آئے گا, نتیجہ بہت جلد نظر آئے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ قراردادیں ہم اسے فائنل کرنے کے بعد میں اپنے تمام ساتھیوں کو بھیجوں گا اور جتنے ہمارے کانٹیکٹس ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر ان کو بھی بھیجیں گے, اور آپ جہاں جہاں اس کو پبلسائز کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا. میں آخر میں اپنے تمام مقررین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت سارا وقت ہمیں دیا ہے, انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور آج کی ہماری جو آج کا ایونٹ ہے اس میں شمولیت اختیار کی, اور انہوں نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اس موضوع کے تمام معاملات پر. اور نہ صرف انہوں نے اس موضوع کے بارے میں بات کی ہے بلکہ انہوں نے ہمیں پاکستان میں رہنے والے تمام انسانوں کی برابری اور ایک اچھے معاشرے کی تخلیق کے لیے ان کی جو کوشش ہے, جو جدوجہد ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے ہم سب کو اپنی روشنی عطا کی ہے. ایک بہت اہم بات کہ جب تک ہم تمام انسان مل کر ایک معاشرے کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے, معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. اور میرے لیے بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے, بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ہمارے ساتھ صرف آج اقلیتی کمیونٹی سے لوگ موجود نہیں ہیں بلکہ اکثریتی کمیونٹی سے بھی لوگ موجود ہیں جو نہ صرف آج کے سیمینار میں موجود ہیں بلکہ ان کی جدوجہد ایک لمبے عرصے سے موجود ہے. وہ ایک لمبے عرصے سے اسی تفریق اور امتیاز کے خلاف اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور خصوصاً ان تمام سول سوسائٹی کے اداروں کا, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو ہم سے کہے بغیر ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور یقیناً ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم اجتماعی طور پہ پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں گے. آخر میں ایک کوٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے اقتدار کے آخری سال میں جب وہ گریس میں موجود تھے تو انہوں نے ان سے کس نے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہونا سب سے بڑا آفس نہیں ہے, بلکہ سب سے امپورٹنٹ ٹائٹل کسی بھی ریاست میں وہ سٹیزن ہوتا ہے. اور ہم آج کی ہماری یہ جدوجہد اسی ٹائٹل کو حاصل کرنے کی کہ ہم کسی بھی پاکستانی شہری کو کمتر شہری نہ سمجھا جائے. ہم تمام شہری ہیں اور ہم سب شہریوں کو برابر کی عزت, احترام اور حقوق ملنے چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ سے پھر رابطہ رہے گا, اور ان تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں فیس بک پر جوائن کیا ہوا ہے. اور میں فردن اپنی بہن سفینہ جاوید, جناب طاہر نوید چودھری صاحب, زمان خان صاحب, فاروق طارق صاحب اور کلیم دورانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے آج وقت نکالا اور ہماری مدد کی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آفتاب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. Thank you very much. So see you again. All the best and very good evening. Thank you. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.